Today we will start today we will start the chapter line and angles. Line and angles, very important chapter for geometry. Lines and angles. Line and angles. Now we define each term here. Angle, what is angle, types of angle, or etc. Already we have to define what is line in previous lecture. All students, those who is new in this video, that student at first see the previous videos. What is line? Very clearly we have to discuss what is line. Now here define angle. Here define angles. What is angle? When two rays when two rays originate from when two rays originate from the same end point, the same end point, then an angle is formed. When two rays originate from the same end point, then the angle is formed. Two rays means this is the rays, this is the rays. What is rays? We have already discussed in previous lectures. What is rays, what is line, what is point, even what is point, all the things we have already discussed in previous lecture. So see clearly in previous lecture, then you will start line and angles. If you directly start line and angles, you have get some problems. What is rays, what is lines, what is points, what is line segment? This is the problems created at if you study this lecture without using previous lecture. इस लेक्चर को पढ़ने से पहले जो पहले लेक्चर हमने दिया है यूक्लिड ज्योमेट्री का, उसको पहले अच्छे से आप लोग देखें, और जो देख लिए होंगे उनको बेहतर समझ में आएगी पहले, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस जो है हमने वहाँ पे दिए थे, लाइंस के दिए थे, एंगल्स के दिए थे, पॉइंट्स लाइंस के दिए थे, लाइन सेगमेंट का था, पॉइंट्स, रेज, ये सारे डेफिनेशन मैं वहाँ क्लियर कर चुका हूँ। इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे अब हम एंगल शुरू कर रहे हैं। तो एंगल्स में ही पहली ही बात आई कि अगर दो रेज मीन्स, तो सबसे पहले रेज तो जानना ही होगा कि रेज क्या है। ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो दो रेज मान लेते हैं ए बी सी, दिस इज द रेज, दिस इज द रेज, दिस इज द रेज। तो कह रहा है कि व्हेन टू रेज originate from the same end point, तो दिस इज द एंड पॉइंट,
इसी इंड पॉइंट से दोनों रेज ऑर्गेनेट हो रही है। रेज के डेफिनेशंस में हमने बताया था कि अ लाइन सेगमेंट विच प्रपोज one end point and another end point and one end point and another point going to infinite। तो इनफाइनाइट तक दूसरी पॉइंट जाता है और एक आर्गुनेट होता है एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से। तो दोनों ये रेज हैं, इसी रेज से हम एंगल ड्रा किए हैं। ठीक है। when two rays originate from the same end point, this is called angles। AB, this is arms, this is known as arms, and angle CAB or angle BAC, both are same thing। CAB या BAC बोथ आर सेम। जो एंगल हमें डिनोट किया जाता है, जो एंगल बनाया होता है, दिस इज द एंगल, दिस पॉइंट इज एंगल। तो जो एंगल बना होता है उसको हम बीच में रखते हैं हर केस में। यहाँ हम देख रहे हैं कि CAB यानी ए पर हमारा एंगल बना हुआ है, तो इसको हम बीच में रखे हुए हैं। इस तरह से अगर चल रहे हैं तो हमको बीच में ए यहाँ मिल रहा है, मतलब ए पर ही एंगल बना हुआ है। ये के लिए ये डिनोट करता है। तो CAB या BAC दोनों एक ही बात है। हियर इज AB and AC is called arm, and angle CAB and BAC is called angle, Now see clearly here the definition of angle. The figure is very clear. In this figure, AB and AC, AB is called arms, AC is called arms, and angle A is denoted by this. Very clear message. This is the what is angles. And point A is called vertex. Point A is called vertex, vertex. This is the end point and this is जहाँ से हम ऑर्गेनेट करते हैं रेस को, वो पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। आर ओरिजिन, या तो हम वर्टेक्स यूज करेंगे या ओरिजिन यूज करेंगे। दिस इज द सेम थिंग इज हियर। we measure the angle in degrees, denoted by, we measure the angle in degrees denoted by if angle A equal to 30 degree, write
measure angle A equal to 30 degree. This is the same thing is here. अगर एंगल A 30 डिग्री है तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं एम ए मीन्स मीजर एंगल है, मीजर द एंगल इन डिग्रीज। तो जो ये डिग्रीज होते हैं, ये जो डिग्री होती है इसको हम एंगल में मीजर कर, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। जो एंगल है उसको ये डिग्री में मेजर करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। This is the complete definition of the angles with figure, and each point is described here in this angles. Now complete your copy and learn skillfully. इसको समझिए, सिर्फ रटिए नहीं। अगर आप इसको रटते हैं तो कतई समझ में नहीं आएगा। एक एक बात को अपने कॉपी पे लिखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है। अभी हम जस्ट ज्योमेट्री की शुरुआत किए हैं, तो एक एक बात अगर आपको क्लियर होती रहेगी पीछे से ही तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्योमेट्री में। जो भी डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर्स में दिए हैं वो सारे डेफिनेशन आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एंगल क्या होते हैं, क्या क्या होती है, इसमें कैसे कैसे ड्राइव करते हैं, ये सारी चीज़ें आप वेरी क्लियरफुली इसको समझिए। Now we have discussed various type of angles. Type of angle. First, acute angle. Acute angle. An angle whose measure is more than 0 degree, that is 0 degree, more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. It's called acute angle. That is, we denote the angle will be theta. Here angle denoted by theta. This is theta. Angle denoted by theta. This is the theta. That is, ये जो एंगल है थीटा है, ये लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये पूरी बात जो लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक,
ये सब इतने से लाइन में सिमट गया कि जो थीटा का मेजरमेंट होगा वो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। यही बात ये फिगर इसमें इनवर्स में लिखा गया है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0। ये एंगल है, ये 0 से बड़ा है, मोर देन है, दैट इज 0 दिस, बट लेस देन 90, तो 90 से लेस है, छोटा है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वेरी क्लियरली वी हैव टू डिस्कस एंगल्स। An angle whose measure is more than 0 but less than 90 is called acute angle. And we have to discuss in figurely. This is A, B, C. This is थीटा। तो ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। दिस इज एक्यूट एंगल। नाउ सेकेंड थिंग इज हियर राइट एंगल। right angle an angle whose measure is an angle whose measure is an angle whose measure is more than 90, सॉरी हम राइट एंगल पढ़ रहे हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। इज कॉल्ड ए राइट एंगल। क्या कह रहा है? दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री एक्यूरेट हो उसे कहेंगे राइट एंगल। नाउ फिगरली हियर अंडरस्टैंड। दिस एंगल इज 90 डिग्री। This is called right angle. This is called right angle. बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा ऐसे होना चाहिए जो 90 डिग्री का है। This is called right angle. And third is here obtuse angle। obtuse angle an angle whose measure an angle whose measure is more than 90 but less than
but less than 180. An angle whose measure is more than 90 but less than 180 is called an obtuse angle. That is जो वैल्यू है थीटा का वो 90 से बड़ा 180 से छोटा ये होना चाहिए। नाइन्टी से बड़ा एंड 180 से छोटा ये होना चाहिए। तो जो बातें यहाँ लिखी गई हैं यहाँ हमने डिनोट किया एक लाइन में, आधी लाइन में हमने डिनोट किया कि थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 इज कॉल्ड obtuse एंगल। नाउ वी हैव very clearly in figure this is the 90, this is the 90। तो 90 से जब बड़ा रहेगा तो और इधर की तरफ आएगा। इधर देख रहे हैं कि 90 से छोटा है, इधर 90, इधर पूरा सीधा 90 है, इधर हम चल रहे हैं पूरा सीधा तो 90 है और इधर आ रहे हैं छोटा है, तो ऑब्वियसली जब इधर आएंगे तो बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये कि एक इस तरह का फिगर A B C, this is the range, तो ये जो थीटा है ये इस तरह का होगा 90 से बड़ा, यानी जब सीधा होता तो हमारा 90 होता, इधर हम इसको थोड़ा बढ़ाए हैं तो 90 से बड़ा हो गया और इधर और ये 180 से छोटा है। Now here straight angle, here is straight angle, an angle whose measure is 180 is called straight angle, is called straight angle। An angle whose measure is 180 is called straight angle। Straight angle means that is जो हमारा थीटा है वो 180 डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कैसे? हमने देखा यहाँ पीछे कि जब इस तरह से एकदम सीधा था तो 90 डिग्री का था, जब इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा दिए 90 से बड़ा कर दिया तो हमारा obtuse एंगल बन गया। ठीक है, अब इसको हम और नीचे लाएं, एकदम सीधा कर दें। इसे क्या करें? इस तरह का फिगर ड्रा करें ऐसा। दिस इज द A, B एंड हियर इज C। इस तरह का फिगर स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल जो थीटा होती है वो 180 के बराबर होता है। क्लियरली जो थीटा होती है वो 180 के
बराबर होती है। तो हमने क्या किया, शुरू किया था यहाँ से ऐसे, इसको थोड़ा सा और सीधा किया सीधा किया तो 90 बना, तो यहाँ पे सीधा होकर के 90 बना। अब इसको और थोड़ा सा बढ़ाया और इधर बढ़ाया तो 90 से बड़ा किया तो ऑब्ट्यूस बना। अब इसको हम और नीचे लाए, इस तरह से नीचे लाते लाते सीधा कर दें एकदम। तो जब हमने इसको एकदम सीधा कर दिया तो ये स्ट्रेट एंगल बना और इसकी वैल्यू कितनी होती है 180। थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180। नाउ सी क्लियरली हियर। Each thing we have tried to understand very clearly. If you make the angle, अगर आपने कॉपी पे आप इसको बनाएंगे, जैसे जैसे हम चल रहे हैं एकदम सेम थिंग आप साथ में वैसे चलेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा भी डिले करते हैं या एक दो वीडियो भी मिस करते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम, नथिंग टू शो। आप अपनी कॉपी पे पूरी तरीके से हम फेयर करा रहे हैं, अपने कॉपी पे आप फेयर करिएगा। आप फिर दोबारा कहेंगे कि नोट्स दीजिए तो हम नोट्स नहीं देंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में कोई दिक्कत होगी, क्लास में डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन नोट्स नहीं दिया जा सकता। आपको बाकायदे नोट्स दे रहे हैं, अपने कॉपी पे आप नोट्स करिए, इसको नोट बनाइए। और बुक है आपके पास, उससे हेल्प लीजिए, वीडियोस से हेल्प लीजिए और नोट बनाइए। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव एंगल। Reflexive angle, an angle whose measure is more than 180 degree, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflexive angle. Reflexive angle. Reflexive angle is here an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflexive angle. इसका मतलब ये है कि that is theta more than 180 degree and less than 360 degree is here. जो स्टेटमेंट है उसको हमने आधे लाइन में सॉल्व किया। ये क्या कहने का मतलब है कि अब क्या करेंगे, इसको हमने सीधा कर दिया था, अब इसको और नीचे की तरफ लाएंगे। जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये 180 से बड़ा होगा। ये जो डिस्टेंस है आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये और बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा और थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स, मतलब 180 से बड़ा है, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन 360 से कम होगा दिस। तो हम क्या किए हैं, ये तो हमारा पहले का ए था, बी हियर, सी को हम सीधा था तो उसको और हम इधर कर दिए। तो जो पहले हम यहाँ से यहाँ तक सीधा चले थे तो और थोड़ा सा बढ़ गया, तो 180 से बड़ा हो गया, ये 180 से बड़ा हो गया थीटा।
जो थीटा था हमारा वो 180 से बड़ा हो गया, लेकिन 360 से कम है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव एंगल। नाउ वी हैव डिस्कस कंप्लीट एंगल। complete angle an angle whose measure an angle whose measure an angle whose measure is an angle whose measure is 360 degree is called complete angle, is called complete angle. Now that is theta equal to 360. यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो हमने यहाँ से इसको बढ़ाया था, इसको ऐसे ला करके इसी बी में कॉन्साइड हो जाएगा। यानी ऐसे चला तो ऐसे आया, फिर ऐसे घूमते इसी एंगल पे चला गया वापस। यानी यहाँ से चला था, ऐसे घूमते इसी पे वापस हो गया। ये हो गया ए और दिस इज बी एंड सी इसी में कॉन्साइड कर गया। तो इस तरह का जो हमारा थीटा बनेगा वो 360 का होगा, 360 का होगा। दिस इज द कंप्लीट टाइप ऑफ द एंगल्स, दिस इज द कंप्लीट टाइप ऑफ एंगल्स। Now we discuss about the line. Line we have already discussed in previous lecture. Line we have already discussed in previous lecture, but here is discuss about the we will discuss about the line angles. This is the definition: when two rays originate from the same end point, then angle is formed this. ये हमारा इस तरह का किसी एक पॉइंट से अगर डिस्क्राइब हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एंगल्स। जो जिस पॉइंट से यह ऑरिजिनेट होगा उस पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो साइड्स हैं, ये ए सी और ए बी, इसको कहते हैं आर्म। तो ये आर्म्स हैं इसके और ये हमारा एंगल है। तो यही जो थीटा मेज़र करते हैं, यही जो एंगल हम मेज़र करते हैं, तो इनके टाइप्स हमने डिस्कशन किया है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द एंगल्स में आपने देखा कि एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मीन्स एन एंगल हुज मीजर is more than 0 but less than 90 degree is called acute angle। तो acute angle होने के लिए थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है मेरा, वो 90 डिग्री से कम एंड मोर देन 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड acute angle। Same thing right angle, an angle
whose measure is 90, accurate 90, is called right angle, is called right angle। तो हमने इस फिगर में दिखाया कि जो थीटा है वो क्या है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। 90 मीन्स एकदम सीधा, एकदम सीधा। तो एकदम जो सीधा होगा ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है। अगर ये इधर राइट साइड में आता है तो इसका मतलब इसकी मेजरमेंट और छोटा होगा, छोटा होगा। ये जो डिस्टेंस है हमारा ये घटेगा। अभी ये इतना छोटा सा है, अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ाते तो ये मेजरमेंट थोड़ा और बढ़ता, और बढ़ाते और बढ़ता, इसका मतलब एकदम बढ़ते बढ़ते सीधा हो जाता। तो ये मेजरमेंट हमारा 90 हो जाता। इसको हम और छोटा करते, बाय द वे यहाँ से है, इसको और छोटा करते तो ये दूरी डिस्टेंस कम होती। तो इसको और छोटा करेंगे तो यानी इधर करेंगे तो हमारा लेस देन 90 होगा, और इधर करेंगे तो ग्रेटर देन 90 होगा। तो हमने देखा कि सीधा सीधा 90 है। अब क्या करें, इसको और इधर की तरफ बढ़ा दें, और इधर की तरफ बढ़ा दें, यानी 90 से बड़ा कर दें। जब इधर बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस और बढ़ेगा, ये डिस्टेंस और बढ़ेगा, यानी एंगल बड़ा होगा। तो एंगल बड़ा होगा तो इसका मतलब ये कि दिस इज द obtuse angle। obtuse angle means an angle whose measure is more than 90 but less than 180 is called an obtuse angle। तो हमने देखा कि जो थीटा है वो लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 बिल्कुल है, ये सीधा हमारा 90 होता, लेकिन हमने और इधर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो इसको कहेंगे 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 180 से छोटा है। नाउ हियर इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मीन्स थीटा की जो वैल्यू होगी वो पूरा 180 के बराबर होगा, तो कहेंगे कि वो स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे हमने थीटा इक्वल टू 180 लिया और क्या किया, इस सी को और इधर बढ़ाया था थोड़ा सा, और बढ़ाते 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 हमने एकदम सीधा कर दिया। ऐसे था 90 था, इसको इधर बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते 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 एकदम क्या किया, इस वाले लाइन के एकदम सीधा कर दिया। तो दोनों एक ही सीध में स्ट्रेट हो गए। इस तरह के कंडीशन के एंगल्स को कहेंगे स्ट्रेट एंगल, और वो जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो होगा 180, वो होगा 180। नाउ हियर रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, एन एंगल whose measure is more than 180 but less than 360 is called reflexive angle। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 360 से छोटा, 180 से बड़ा। तो हमने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया इधर, और इधर नीचे की तरफ लेके आया, तो ऐसा फिगर बनेगा। और ये देख रहे हैं कि मेजरमेंट बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। 180 होता तो यहीं तक होता, लेकिन इसको बढ़ा दिए तो और इतना बढ़ गया, तो यानी 180 से बड़ा हो गया। तो एक ऐसा थीटा जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल, उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। नाउ हियर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट नाम से ही आपको लग रहा है कि एकदम पूरा कंप्लीट होगा, वो नाम से ही ऐसा दिख रहा है। तो एन एंगल हुज मेजर इज 360 is called complete angle। an angle whose measure is 360 is called complete angle। क्या किया मैंने फिगर में, इसको इतना बढ़ा के और इधर बढ़ाया, और इधर बढ़ाते 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 इसी रेस पे जा कर के हमने इसको कॉन्साइड करा दिया, इसी रेस पे कॉन्साइड करा दिया। तो ये हो गया 360, पूरा एक सर्किल बन रहा है। तो हमने देखा कि इसको बढ़ाते बढ़ाते जब इसी पे कॉन्साइड कर दिया तो एक सर्किल हमको ड्रा हो गई, और एक सर्किल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 होता है। तो दिस इज़ द 360, ये दिस इज़ द एंगल ऑफ 360, यहीं पे जाके कॉन्साइड हो गया। तो इस तरीके का जो हम फिगर देखेंगे उसकी मेजरमेंट कितना होगा, 360 होगा। दिस इज़ द कंप्लीट एंगल। नाउ द टाइप्स ऑफ एंगल विल बी कंप्लीट। नाउ the type of angle is complete। In next videos we have discussed another type of angles।
Next video we have discussed another type of angles like equal angles, angle bisector, complementary and supplementary angles. This is the very important angles for your syllabus. uh, Complementary, supplementary, equal angle, angle bisector, this is the main thing of the geometry. एंगल्स, दिस एंगल्स, इस तरह के जो एंगल्स हैं, एंगल्स की जो डेफिनीसन है यहीं से शुरुआत होती है ज्योमेट्री की। सारे एंगल्स कैसे हैं, कहाँ से आए, किस तरह के हैं, किस तरह से इनका मेजरमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हम पिछले लेक्चर से ही डेफिनीशंस आपको दे रहे हैं और अभी एक दिन और लगेंगे सारे एंगल्स को डिस्कशन करने में। उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल में चलेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने से आपको ज्योमेट्री नहीं आएगी। ज्योमेट्री आने के लिए ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल डेफिनीशंस हैं, फंडामेंटल बातें हैं, वो आनी चाहिए। इसलिए हम पहले इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इसका जो फंडामेंटल डेफिनीशंस हैं उसको समझ लिया जाए, फिर हम डायरेक्टली ज्योमेट्री शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में लगेंगे, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलते हैं तो इन सारी बातों का न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि डेफिनीशंस को दिमाग में रखिए, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करने चलेंगे तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि रिफ्लेक्सिव एंगल से, कह दूंगा कंप्लीट एंगल, बोल दूंगा राइट्स एंगल, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम क्या कह रहे हैं। इसलिए डेफिनीशंस को अपने दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनीशंस। बिना डेफिनीशंस का आप नहीं कर सकते। और कॉपी, फिर कह रहा हूँ, कॉपी आप अपना तैयार करिए। थैंक यू।